Hi everyone. With RBI Grade B 2024 almost coming to an end now, if you are preparing for 2025, it's time to put your focus on RBI Grade B 2025. और उसमें जो मेजर कंपोनेंट है, एक मेजर एरिया है जहां पे आपको फोकस करना है, दैट इज करंट अफेयर्स. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस the analysis of RBI Grade B 2024 Phase 1 paper, and based upon that, let's discuss about what is the right time to start your current affairs. What are the best sources that you should be following for your next year? What are the areas you should be focusing on? Schemes ज़्यादा पढ़नी चाहिए, RBI notifications, GA, whatever it is, I'll tell you. And what is the right orientation so that you study only the relevant content, because current affairs में one of the major problem is that there is too much content. If you're not able to filter out, then you will be filtered out in phase 1 itself. तो ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले वाई करंट अफेयर्स आर इंपॉर्टेंट, जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज की वीडियो में, वो क्यों इंपॉर्टेंट है. बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. फेज 1 में करंट अफेयर्स का 40% वेटेज है. जीएस सेक्शन इज 80 मार्क्स आउट ऑफ 200. So this is something very, very important, and I think other sections, the major focus is to just clear your sectional cutoffs, mainly in quant and reasoning. But GA is one section which will help you to clear the overall cutoff. अगर मैं फेज 2 की बात करूं, सो नियर अबाउट 33% वेटेज है, जिसमें से आपको फाइनेंस ऑब्जेक्टिव में अराउंड 10 मार्क्स के करंट अफेयर्स आते हैं. फाइनेंस सब्जेक्टिव में अराउंड 15 मार्क्स ऑफ करंट अफेयर्स आर आस्क्ड, 10 इन ESI. Objective around, you can say, 40 to 45 marks of current affairs are asked, and in ESI subjective around 20 marks of current affairs are asked. So this 40 plus 20, 65 plus 10, 75 plus 15, around 90 marks of current affairs out of 300, plus there would be some role of current affairs in descriptive English also. So ये total आपका 33% वेटेज इस हिसाब से मैंने निकाला है. बट द पॉइंट इज दैट करंट अफेयर्स आर इंपॉर्टेंट. दैट इज व्हाट आई वांट टू कम्युनिकेट फ्रॉम दिस. नाउ द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड व्हेन वी हैव टू प्रिपेयर फॉर 2025 साइकिल इज दैट व्हाट आर द टाइमलाइंस. सर शुरू कब करें और कितने महीने का पढ़ें? सो द डेटा स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. अगर मैं यहां पे बात करूं, दिस इज द चार्ट व्हिच इज एक्चुअली शोइंग यू दैट इन दिस फेज 1 एग्जाम हाउ मेनी करंट अफेयर्स केम फ्रॉम प्रीसीडिंग 1 मंथ ऑफ द एग्जाम. आपका एग्जाम 8 सितंबर को हुआ था, तो 8 अगस्त मतलब अगस्त के महीने से कितने करंट अफेयर्स आए आपके एग्जाम में? दे आर 21 क्वेश्चंस. 2 मंथ्स प्रीसीडिंग द एग्जाम मतलब जुलाई के महीने से कितने क्वेश्चन आए? 21. सो दिस वे इफ यू सी, there are very less current affairs which are asked from the months beyond 5 months. मतलब 7, 8, 9, only limited number of questions are asked here. ये 5, 7, 8 जो भी हैं, but the majority of the questions you can see are asked from the immediately preceding 5 months. 21 plus 21, 42 plus 13, 55 plus 8, 63, 66. 66 out of 80. Near about 80% or even more than that questions that have been asked in your exam are from the immediately preceding 5 months. और अगर मैं सिर्फ 3 मंथ्स भी ले लूं यहां पे, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 मंथ्स, देन आई एम एट 55 आउट ऑफ 80. दिस इज ऑलमोस्ट लाइक 70%. तो बहुत क्लियर एक सिग्नल है दैट इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 मंथ्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड इवन इफ यू डोंट हैव टाइम टू रीड द करंट अफेयर्स फॉर 5 मंथ्स, एटलीस्ट रीड फॉर 3 मंथ्स. इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, you will be able to give your good shot in the exam, but I would recommend you to go for 5 months. और मैं ये phase 1 के बारे में बता रहा हूं, but I also want to tell you कि phase 2 में I would say कि आप 6 months के पढ़ के जाओ, and this 5 months of current affairs that you will read here for your phase 1 will automatically become 6 months, because there would be gap of 1 month between phase 1 and phase 2. तो उसमें जो additional current affairs होंगे वो अगर आप मिला लेंगे phase 2 में, आपके अपने आप 6 महीने के करंट अफेयर्स बन जाएंगे. सो व्हेन टू स्टार्ट नाउ? व्हेन आई एम सेइंग दैट यू हैव टू रीड प्रीसीडिंग 5 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स बिफोर फेज 1, व्हेन टू स्टार्ट? फॉर दिस वी नीड टू नो द डेट ऑफ द एग्जाम व्हिच वी डोंट नो येट. तो लेट्स अज्यूम के नोटिफिकेशन एट द अर्लीस्ट कैन कम इन द मंथ ऑफ अप्रैल. अप्रैल में आएगी तो जून में एग्जाम होगा, से इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून. हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है, कैसा हो सकता है, होगा या नहीं पता नहीं है.
तो अगर जून में आपका एग्जाम होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एज पर दिस एनालिसिस वुड बी जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई. जैन टू मई वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर योर एग्जाम. तो अभी आप करंट अफेयर्स मत पढ़िए. डू नॉट स्टार्ट योर करंट अफेयर्स फॉर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. See, there is a time for everything. Right now, it's the time to study your static portion. तो इन करंट अफेयर्स को पढ़कर अभी टाइम मत खराब कीजिए. If you have really extra time, first study the static part. After that, obviously, if you have some time left, you can read the current affairs, you can read the editorials. I mean, reading newspaper daily is not something I would say you are preparing for exam. That should be your habit. So अगर आपके पास टाइम है आप पढ़ो, बट टाइम नहीं है तो भी करंट अफेयर्स में मत घुसो, क्योंकि स्टार्टिंग करने का ये राइट टाइम है. एंड द राइट टाइम टू स्टार्ट योर करंट अफेयर्स वुड बी फ्रॉम जनवरी और मे बी फरवरी आल्सो. इट्स नॉट टू लेट इवन इफ यू स्टार्ट इन फरवरी. तो टाइमलाइंस की ये चीज आप याद रखना. नाउ कमिंग ऑन टू द वेटेज, यहां पे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं. जब हम वेटेज की बात करते हैं, कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट हैं, कौन से एरियाज मोर स्कोरिंग है. अगर हम फेज 1 का पेपर एनालाइज करें जो आपका 2024 में आया है, द क्लियर पैटर्न विच इज इमर्जिंग इज के आरबीआई नोटिफिकेशंस जिसमें से 19 क्वेश्चन आए और फाइनेंस करंट अफेयर्स जिसमें से 8 क्वेश्चन आए, दीज टू थिंग्स आर मेकिंग इट अ टोटल ऑफ 27 मार्क्स. 27 out of 80, which means 33% of your paper is from RBI notifications और finance current affairs. Earlier this was not the trend. So जो ये मैंने प्लस मार्क किया है, this is for RBI notifications increase in number of questions. ये बहुत मेजर ट्रेंड है जो चेंज हो रहा है. पहले ये 8 से 9 आते थे, अब ये 19 आए हैं. सीधा हर साल ये जो रेशो है आरबीआई नोटिफिकेशंस का वो बढ़ रहा है. और क्वेश्चन कम कहां हो रहे हैं? इफ यू analyze the major area where the questions are becoming less is journal awareness. There was a time when there used to be 30 to 35 questions. Last year there were 25 questions and this year again it's 16. So the trend is moving more towards questions related to RBI notifications, RBI circulars and reducing the number of questions from journal awareness. ये दो areas हैं जो आपको बहुत closely observe करने हैं. ठीक है. जो बाकी एरियाज हैं जैसे कि रिपोर्ट्स में क्वेश्चन कम हुए हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स में क्वेश्चन बढ़े हैं, सॉरी स्कीम्स में क्वेश्चंस कम हुए हैं. यहां पे आई थिंक दिस इज लाइक टच एंड गो. इस साल रिपोर्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आए क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट वर रिलीज वेरी नियर टू योर एग्जाम, सो वहां से 4-5 क्वेश्चन अटक गए. बट आई सी ओवर द इयर्स नेक्स्ट ईयर शायद ये दोबारा 10 हो जाए, ये दोबारा 12 हो जाए. दिस कैन हैपन. सो दीज एरियाज आर नॉट I would say major shift in the trend in the exam. Similarly, ESI current affairs यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन कम आए हैं, but this can again change to 10 or 12 next year. The major trend which we can clearly observe, which is happening over the past 2 years now, the weightage of RBI notifications is increasing and the weightage of journal awareness is decreasing. ये मैं phase 1 की बात कर रहा हूँ. So phase 1 में the most important areas I would say would be the RBI notifications and finance current affairs now, क्योंकि 30% तो आपका यहीं से कवर हो रहा है. And do not just rely on your preparation which you have been doing in current affairs for your banking examination. Banking में सबसे ज्यादा क्या पूछते हैं? ये जनरल अवेयरनेस का मतलब यहाँ पे क्या है? ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन है, जनरल अवेयरनेस मींस जेनरिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू करंट अफेयर्स सच एज स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, एमओयूज, साइंस एंड टेक, डिफेंस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, इंपॉर्टेंट डेज, थीम्स, समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस. मतलब बैंकिंग वाले करंट अफेयर्स आप समझ लो. दैट इज व्हाट आई मीन बाय जर्नल अवेयरनेस. ठीक है, ओवरऑल इस सेक्शन का नाम भी जर्नल अवेयरनेस है, बट उसमें इन एरिया से क्वेश्चन आते हैं. एंड दिस आई कॉल जर्नल अवेयरनेस और जर्नल करंट अफेयर्स, जो बैंकिंग एग्जाम्स में भी आते हैं, बट इनका वेटेज कम होता जा रहा है. सो इस पे ज्यादा रिलाई मत करो. डू नॉट रिलाई ऑन बैंकिंग करंट अफेयर सोर्सेज. दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, क्योंकि उनमें आपको आरबीआई नोटिफिकेशंस, फाइनेंस करंट अफेयर्स उस एक्सटेंट में मिलेंगे ही नहीं. इनफैक्ट ईएसआई करंट अफेयर्स भी नहीं मिलेंगे. इनफैक्ट रिपोर्ट्स भी उस एक्सटेंट पे नहीं मिलेंगी व्हाट यू आर सपोज टू रीड फॉर आरबीआई. सो विच एरियाज आर इंपॉर्टेंट? Though all the areas are important, but the trend is shifting towards more questions from RBI notifications and finance current affairs instead of GA. GA has become less important now. And which areas are more scoring? Weightage तो एक बात है, और वेटेज के अलावा मैं बताऊंगा, अगर आप जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चंस देखेंगे, आई वुड से जर्नल अवेयरनेस इज वेरी वास्ट. एंड इन स्पाइट ऑफ वास्टनेस, चलो आपने पढ़ भी लिया, क्वेश्चंस काफी इनडायरेक्ट आते हैं, मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा. आसान तो ये भी नहीं है, बट एरियाज लाइक आरबीआई नोटिफिकेशंस, इफ यू रियली स्टडी वेल फॉर द past 5 months of RBI notifications and finance current affairs,
वो भी शायद जीए जितना ही बड़ा हो जाएगा, बट यहां पे मुझे नहीं लगता ऐसा होगा कि आपने पढ़ा और फिर भी आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपने देखे ही नहीं थे या पढ़े ही नहीं थे कहीं और से आगे। 10 आरबीआई नोटिफिकेशन आई एक महीने में, 10 की 10 पढ़ ली तो क्वेश्चन एग्जाम में उसी में से अटकेगा। यहां पे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन होने की अगर आप पढ़ के जाओगे बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू जनरल अवेयरनेस, जहां पे इवन पढ़ने के बाद क्वेश्चन कहीं और से आ जाएगा या इनडायरेक्ट आ जाएगा, यू माइट नॉट स्टिल बी एबल टू डू इट। ठीक है, तो आरबीआई नोटिफिकेशंस बहुत स्कोरिंग एरिया है, फाइनेंस करंट अफेयर्स, उसके बाद बाकी सारे करने हैं हमें, गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स, बिकॉज ये तो मैं फेज 1 की बात कर रहा हूं। अगर मैं फेज 2 की बात करूं तो जनरल अवेयरनेस फेज 2 में बिल्कुल नहीं आएगा। बाकी जो सारे एरियाज हैं, ईएसआई, फाइनेंस, आरबीआई नोटिफिकेशंस, रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स फेज 2 में भर भर के आती हैं। आई होप दिस ट्रेंड कंटिन्यूज दिस ईयर ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कीम आप छोड़ दोगे, फेज 1 में सिर्फ 7 नंबर की है, ये नहीं, फेज 2 में बहुत आएगी। तो ओवरऑल सारी एरियाज इंपॉर्टेंट है। फेज 1 में आरबीआई नोटिफिकेशन एंड करंट अफेयर्स इज समथिंग towards which the trend is shifting, and GA is becoming less important, and GA is less scoring also as compared to RBI notification and finance current affairs if you do them well. For phase 2 again, RBI notifications and finance current affairs are important for your finance paper, and government schemes and reports are very important for your ESI paper. And we need to do integrated preparation for phase 1 and phase 2, क्योंकि phase 1 में जो अलग चीज है वो तो सिर्फ यही रहेगी 16 नंबर की, जो तो मैं कह रहा हूं कि लीस्ट इंपॉर्टेंट और लीस्ट स्कोरिंग है, बाकी सब तो कॉमन है विच विल कम बोथ इन फेज 1 एंड फेज 2। तो हमें ये इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस थोड़े मैं दिखा देता हूं आपको। जनरल अवेयरनेस में बहुत बहुत इनडायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट का मतलब, मेरा मतलब ये है कि आपने सपोज ये न्यूज आर्टिकल था कि अभिनव बिंद्रा अवॉर्डेड ओलंपिक ऑर्डर फॉर डिस्टिंग्विश कंट्रीब्यूशन टू ओलंपिक मूवमेंट, ये हेडलाइन थी, आपने देख लिया भैया किसको मिला, अभिनव बिंद्रा को मिला। क्या मिला? ये अवार्ड मिला, ओलंपिक ऑर्डर फॉर डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन टू ओलंपिक मूवमेंट। ये अवार्ड मिला, किसको मिला? अभिनव बिंद्रा को मिला। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया है कि रिसेंटली इंडियन शूटिंग आइकन अभिनव बिंद्रा हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन टू द ओलंपिक मूवमेंट। बिंद्रा हु बिकेम इंडियाज फर्स्ट एवर ओलंपिक इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट इन द ईयर, पूछ लिया कि उन्होंने गोल्ड मेडल कब जीता था। तो न्यूज ये है कि उनको कोई अवार्ड दिया गया है, बट इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा है कि इन्होंने मेडल कब जीता था। सो दिस इज एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन, दिस इज नॉट डायरेक्टली बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, दिस इज रिलेटेड टू द न्यूज विच इज इन करंट अफेयर्स, सो दिस इज एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। पर ऐसा नहीं है क्वेश्चन कर नहीं सकते थे। अगर आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ते तो यहां पे इस न्यूज में ही लिखा हुआ था कि इनको 2008 में मेडल मिला था। तो जो ये सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, दे आर नॉट लाइक समथिंग विच इज जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स, they are covered within the news article where main news is covered। main news ये है, बट ये आपके न्यूज के अंदर चीजें दिए होती हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी। यू कैन नॉट जस्ट बी रीडिंग दी हेडिंग्स एंड क्रैमिंग देम, दैट कैन बी डन इन बैंकिंग एग्जाम्स बट नॉट इन आरबीआई। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं। मार्क रूट हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द नेटो चीफ अमिड कंसर्न्स ओवर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ही हैज सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर फॉर विच कंट्री। तो मेजर न्यूज तो ये थी कि नेटो चीफ अपॉइंट किया गया, किसको किया गया? मार्क रूटे को। बट वो किस कंट्री के पीएम हैं? दिस इज काइंड ऑफ इनडायरेक्टली रिलेटेड टू मार्क रूटे विच हैज बीन आस्क्ड इन योर एग्जाम। काफी लोग इसको करके गए होंगे, काफी लोग शायद नहीं करके गए होंगे। तो इस तरह के इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आपको आते हैं। नेक्स्ट, कमिंग टू द टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन आरबीआई नोटिफिकेशंस, यहां पे मोस्ट ऑफ देम आर डेटा बेस्ड and many of them are in depth। मतलब you cannot study RBI notification by just reading a one paragraph। RBI notifications are circulars which are very detailed, there are a lot of detailing with respect to various aspects। you need to remember all those aspects because they can be asked in your exam। और ज्यादा से ज्यादा एस्पेक्ट जो पूछे जाते हैं वो डेटा बेस्ड है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द मिनिमम लिमिट फॉर बल्क डिपॉजिट फॉर लोकल एरिया बैंक्स, 5 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, डेटा बेस्ड है। What is the maximum deposit duration for housing finance companies? ड्यूरेशन बेस्ड है, फैक्ट बेस्ड है, 60 मंथ है, 50 मंथ है, 40 मंथ है, आपको ये बताना है। What is the asset size for NBFC MDs to appoint internal ombudsman as per RBI internal ombudsman? कितने करोड़ है? फैक्ट बेस्ड है। According to recent RBI report, India's foreign exchange reserves are now sufficient to cover over dash of projected imports। 11 months, 10 months, 9 months, 8 months, फैक्ट बेस्ड है। कितने मंथ्स हैं, कितने करोड़ हैं,
ठीक है, यही सारी चीजें आपको पूछी गई हैं, टोटल फैक्ट बेस्ड है। आरबीआई नोटिफिकेशंस दो दे आर टेक्निकल, बट इवन इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देम, डू नॉट वरी। और आरबीआई नोटिफिकेशंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आरबीआई नोटिफिकेशंस ही पढ़ ली। देयर इज अ टैब ऑन द वेबसाइट ऑफ आरबीआई व्हिच इज सेइंग नोटिफिकेशंस, ऐसे मेन्यू में एक टैब है, ये तो पढ़नी ही पढ़नी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट से एक दो क्वेश्चन आए हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स एक क्वेश्चन आया है, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस से क्वेश्चन आया है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट से, मतलब ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं आरबीआई की, ये आपको नोटिफिकेशंस के अंदर नहीं मिलेंगी, बट रिपोर्ट्स टैब के अंदर मिलेंगी, ये भी आपको पढ़ना है। स्कीम्स फेज 1 में ज्यादा नहीं आते, लेकिन फेज 2 में बहुत भर भर के आते हैं। तो यहां पे अगर मैं फेज 1 की बात करूं तो ऐसा कोई बहुत फ्लैगशिप स्कीम्स नहीं आई हैं, मतलब पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना लगा लीजिए, एनपीएस लगा लीजिए, एसजीबी तो बहुत पुरानी है, चलती जा रही है, अब तो शायद बंद हो जाएगी, ओलंपिक पोडियम स्कीम, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दीज आर नॉट ऑल वेरी रिसेंटली लॉन्च स्कीम्स, पुरानी है, बट पीएमएवाई तो न्यूज में थी क्योंकि यूनियन बजट में कुछ एलोकेशन हुआ था इसको। और हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके फाइनेंस इंश्योरेंस रिलेटेड आते हैं, जैसे एनपीएस, पेंशन रिलेटेड, गोल्ड बॉन्ड रिलेटेड, इंश्योरेंस रिलेटेड। तो ये आप मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जो भी पेंशन, इंश्योरेंस, गोल्ड बॉन्ड्स रिलेटेड स्कीम्स हैं उनको जरूर पढ़ के जाएं। बाकी स्कीम्स का वेटेज कम हो रहा है, एज आई टोल्ड यू इन फेज 1, पिछले 2 साल से कम हो रहा है, ठीक है, यहां पे कम हो रहा है, बट फेज 2 में अभी भी कायम है इसका झंडा। तो फेज 2 के लिए हमें स्कीम्स पढ़नी पड़ेंगी, और फेज 1 के लिए 5 मंथ्स जैसा मैंने बताया, फेज 2 के लिए 6 मंथ्स। और ये सारी स्कीम न्यूज में थी, कहीं ना कहीं न्यूज में थी एग्जाम से पहले, ऐसा नहीं रैंडमली पूछ ली गई हैं, देयर वाज समथिंग हैपनिंग इन ऑल ऑफ दीज स्कीम्स, दैट्स व्हाई दे हैव बीन आस्क्ड इन योर एग्जाम। रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स में से भी फैक्ट बेस्ड पेपर आया है, दैट इज कॉमन अक्रॉस ऑलमोस्ट ऑल द कैटेगरीज, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें से जर्नली तो जैसे हम बोलते हैं दैट मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स दैट आर आस्क्ड टू यू इन द एग्जामिनेशन आर द वंस व्हिच आर रिलीज्ड बाय सम ब्रांडेड एंटिटीज ऑफ स्टेचर, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही रिलीज करती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एनवायरमेंटल पीस इंडेक्स, नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एसडीजी इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक की कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। तो 10-11 क्वेश्चंस जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं, उसमें से 8 या 9 क्वेश्चंस उन ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट से आए हैं जो बड़े बड़े नाम हैं। तो हमें ज्यादा फोकस उन ऑर्गेनाइजेशंस पे करना है जिनके बड़े बड़े नाम हैं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रिपोर्ट्स अदरवाइज, where we need to focus on, you need to decide it consciously, because then only you will be able to cover the syllabus on time. बाकी रिपोर्ट्स आई है, ठीक है, रैंडस्टैट की ये ब्रांड रिसर्च आई है, एक और ये कंटारा की ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट आई थी, बट ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं। आई एम नॉट श्योर वेदर यू विल बी एबल टू कवर एवरीथिंग एंड नॉट ओनली कवर, रिमेंबर एवरीथिंग। सो हमें सेलेक्टिव तो होना पड़ेगा ही। सो आई विल ऑलवेज से के cover reports for 5 months for phase 1, 6 months for phase 2, and cover the reports which are released by national और international organizations, इंडिया की या बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस हों, लेकिन जो अपने आप में बड़े बड़े नाम हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, यूनेस्को, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ओईसीडी, इंडिया के लेवल पे बात करें तो आरबीआई, सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग, ये सारे बड़े बड़े नाम हैं, इनकी रिपोर्ट्स हर साल पूछी जाती है। और स्टैटिक पोर्शन की बात करें तो देयर इज अ मिसकॉन्सेप्शन दैट स्टैटिक मींस दैट दे विल आस्क यू अबाउट रिवर्स, डैम्स, करेंसीज। अगेन दिस माइट बी इंपॉर्टेंट फॉर योर बैंकिंग एग्जाम्स। अब आरबीआई से ऊपर उठ चुका है, ये चीजें नहीं पूछता है। व्हाट दे आर आस्किंग यू इज समथिंग रिलेटेड टू योर फेज 2 सिलेबस। जैसे ये पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर नॉट एट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हम अपने फाइनेंस सब सिलेबस में फेज 2 में पढ़ते हैं। तो अगर आपने फेज 2 की तैयारी पहले कर ली है, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस वुड बी केक वॉक फॉर यू। ज्यादा आई नहीं है वैसे, टोटल 3 ही आए थे इस साल, इसका वेटेज भी कम होता है, पहले ये 5 से 7 आते थे, तब स्टैटिक का वेटेज भी कम कर रहे हैं, जीए का भी कम कर रहे हैं। दे आर मोर और लेस फोकसिंग टुवर्ड्स जीएसआई करंट अफेयर्स, फाइनेंस करंट अफेयर्स, आरबीआई नोटिफिकेशंस और ऑल्सो काइंड ऑफ फाइनेंस करंट अफेयर्स एंड स्कीम्स।
ठीक है, और जो फाइनेंस करंट अफेयर थे, क्योंकि आरबीआई नोटिफिकेशंस तो हमने अलग कैटेगरी बना दी है, अब फाइनेंस करंट अफेयर्स में क्या बचेगा, आरबीआई के तो सारे आरबीआई नोटिफिकेशंस में चले गए। यहां पे जो मेनली बचता है दैट इज सेबी की न्यूज या स्टॉक मार्केट रिलेटेड। तो ये वाला क्वेश्चन सेबी का है, ये वाला क्वेश्चन जेपी मॉर्गन इंडेक्स इज अगेन रिलेटेड टू डेट मार्केट विच इज पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। ये एसएमई आईपीओ अगेन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, ये सेबी की न्यूज है। तो फाइनेंस करंट अफेयर्स में सेबी, स्टॉक मार्केट और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यहां पे एक और लिख लो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कोई रेगुलेशन आए, कोई मेजर अपडेट आए, कोई मेजर चेंज हो, जैसे कि यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे, अगेन वैसे हम वो रिपोर्ट्स में गिनते हैं, बट दोज आर बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विच आर इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंस करंट अफेयर्स। तो ये एरियाज हैं जो हमें फाइनेंस करंट अफेयर्स पे फोकस करने हैं। तो इतना कोई हमें चेंज नहीं करना है, व्हाट वाज देयर इन 2024 ऑलमोस्ट रिमेन्स द सेम, बट मेजर ट्रेंड शिफ्ट वही है कि आरबीआई नोटिफिकेशंस, फाइनेंस करंट अफेयर्स, these are becoming more and more important as compared to GA which was important earlier, and GA is becoming less and less scoring। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी इनडायरेक्ट आ रहे हैं, whereas questions from RBI notifications are direct, डेटा बेस्ड हैं। अगर हमने अच्छे से पढ़ के रट्टा वट्टा लगा लिया तो हम कर पाएंगे, ठीक है। और सोर्सेज की बात करूं, सो ideally I always recommend that you should be reading some compiled sources because it is very difficult to cover everything from scattered sources। आरबीआई नोटिफिकेशंस कहीं से पढ़ रहे हैं, सेबी का कहीं से पढ़ रहे हैं, स्कीम्स कहीं से पढ़ रहे हैं, सो इट ऑलवेज गुड दैट यू फॉलो वन सोर्स विच इज कंपाइलिंग एवरीथिंग फॉर यू, विच इज मेकिंग इजी फॉर यू, ठीक है। तो उसमें इफ यू एनालाइज, मतलब अब इसमें मैं ये सोर्सेज जो बता रहा हूं कि पीआईबी से 21 क्वेश्चन आए, अब ये पीआईबी वाली चीज आपकी बिजनेस स्टैंडर्ड में भी आई होगी या हिंदू में भी आई होगी, बट लेट्स टेक पीआईबी एज दी प्राइमरी सोर्स। तो यहां से 21 क्वेश्चन आए हैं आरबीआई वेबसाइट से, जो भी आरबीआई नोटिफिकेशंस हैं वी आर काउंटिंग इट फ्रॉम आरबीआई वेबसाइट, अराउंड 18 क्वेश्चंस, लाइव मिंट से 10, हिंदू से 8। आई ऑलवेज रिकमेंड दीज आर दी 4 सोर्सेज विच यू शैल बी फोकसिंग ऑन, जहां से आपको आई थिंक 60 तक क्वेश्चंस आ गए हैं। बट इनको भी अपने आप में पढ़ना बहुत मुश्किल है, बट स्टिल इफ यू आर समबडी हु हैज टाइम टू डिवोट टू करंट अफेयर्स डेली 3 to 4 hours, you should try reading these original sources by yourself, otherwise go for compiled sources। ये 4 तो आप पढ़ ही लो, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन स्ट्राइक होते हैं। बाकी इस साल बिजनेस स्टैंडर्ड और हिंदू बिजनेस लाइन से भी काफी क्वेश्चंस मिले हैं, और फिर अदर सोर्सेज सच एज इकोनॉमिक टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया से भी 6 क्वेश्चन आए। बट दिस इज ओके, आई मीन यू कैन नॉट कवर एवरी सोर्स। तो अगर आप ये 4 प्राइमरी सोर्स कवर कर लो और इनको आप छोड़ दो कि मैं कुछ एमसीक्यूज करूंगा वहां से कर लूंगा, ठीक है, या कुछ सेशंस यूट्यूब पे देख लूंगा वहां से हो जाएंगे, दैट वुड बी बेटर। यू कैन नॉट रीड ऑल दीज सोर्सेज बाय योरसेल्फ, व्हाट यू कैन रीड इज मैक्सिमम 4, जो ये 4 हैं, पर इसमें भी बहुत टाइम लगेगा। सो इफ यू डोंट हैव टाइम, गो फॉर सम कंपाइल्ड सोर्सेज। ये जनरली आपको पेड सोर्सेज में ही मिलती हैं, तो या तो अपने किसी फ्रेंड से ले लीजिए या किसी का कोर्स बाय कर लीजिए, वॉट एवर नो योर पॉकेट सूट्स यू, बट कंपाइल्ड सोर्सेज विल मेक इट लिटिल ईजियर फॉर यू। तो की पॉइंट्स मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूं। स्टार्ट एट द राइट टाइम विच इन माय ओपिनियन वुड बी जैन एंड फेब फॉर 2025। आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट एरियाज, सारे एरियाज इंपॉर्टेंट है बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आरबीआई नोटिफिकेशंस, ठीक है, स्कीम्स, फाइनेंस करंट अफेयर, ईएसआई करंट अफेयर, दीज 4 वुड बी द इंपॉर्टेंट एरियाज। रिपोर्ट्स ऑल्सो, जीए ही मतलब मैं बोलूंगा जो इंपॉर्टेंट नहीं है और लेस स्कोरिंग है उसको लास्ट प्रायोरिटी रखो। राइट ओरिएंटेशन वही है जो मैंने बताया है, डेटाबेस क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल फैक्चुअल प्लेन, उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, बहुत सारे एमसीक्यूज करने पड़ेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू रिमेंबर ऑल द डेटा एंड फॉलो द राइट सोर्सेज। आई टोल्ड यू अबाउट द सोर्सेज, इन माय ओपिनियन PIB, RBI website, Live Mint, Hindu, these are the 4 primary sources। apart from that you can refer any compiled magazine, मतलब not apart from that, तो या तो ये कर लो या compiled magazine पढ़ लो, दोनों में से एक चीज कर लो। और I would say go for 1.5 source। अगर आप compiled magazine यूज कर रहे हैं एक, तो वो पढ़ लीजिए। What is another 0.5? This is I am saying that you read MCQs from some another source। Suppose आपने ए कोचिंग इंस्टीट्यूट की कंपाइल्ड मैगजीन पढ़ ली, तो आप ये तो पूरा कर ही लेंगे, आप बी कोचिंग इंस्टीट्यूट के सिर्फ एमसीक्यूज कर लो, दैट विल मेक इट 1.5 सोर्स फॉर यू। तो अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच गई होगी वो आपको बी के एमसीक्यूज में तो मिल ही जानी चाहिए। अगर यहां भी नहीं मिलती तो एनीवेज इट वाज नॉट इंपॉर्टेंट, वो एग्जाम में आती है तो एक अलग चीज है। और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये जितना भी आप पहले 4 स्टेप्स को फॉलो कर लो, इफ यू विल नॉट फॉलो द 5th स्टेप, दैट इफ यू विल नॉट फॉलो
रिवीजन, इफ यू विल नॉट डू प्रैक्टिस लॉट ऑफ एमसीक्यूज, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. रिवीजन कैसे करनी है? मेरे हिसाब से मिनिमम 3 रिवीजन होनी चाहिए आपकी. जो चीज पढ़ते हो उसको उसी वीक, सेम वीक रिवाइज करो, सेम मंथ रिवाइज करो, मंथ के एंड में सारा मंथ का रिवाइज करो, वीक में एंड में सारे वीक का रिवाइज करो, और एक फाइनल रिवीजन मारो एग्जाम से 15-20 दिन पहले, लास्ट 15-20 डेज एक फाइनल रिवीजन होनी चाहिए. तभी एक अच्छी रिवीजन होगी, तभी चीजें याद रहेंगी, तभी एक कॉन्फिडेंस भी आएगा. ठीक है. एंड ये हमने काफी एमसीक्यूज वगैरह की बात की, बट लेट्स नॉट फॉरगेट दैट करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फेज 2, बिकॉज जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसमें यू हैव टू इंटीग्रेट योर करंट अफेयर्स. उसके लिए मैं बोलूंगा आप एडिटोरियल्स पढ़ो. ठीक है, ये चीजें पढ़कर वो लेवल नहीं बनेगा करंट अफेयर्स का जो डिस्क्रिप्टिव के लिए चाहिए. सो इवन इफ यू आर रीडिंग योर करंट अफेयर्स फ्रॉम कंपाइल्ड सोर्सेज ऑफ एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, लेट्स नॉट फॉरगेट द इंपॉर्टेंस ऑफ एडिटोरियल्स व्हिच विल गिव यू गुड फॉडर. डेटा के साथ चीजें रीजन में भी दी जाएंगी, which इज वेरी क्रूशियल. तो जैसे ये कुछ टॉपर्स हैं जिन्होंने ये डेटा बनाया था पिछले साल, एग्जांपल है सिर्फ कि हेल्थ पे उन्होंने क्या किया. उन्होंने कुछ डेटा लिख लिया कि गवर्नमेंट कितना स्पेंड करता है, ठीक है, या फिर किसी की कोई रिपोर्ट या स्कीम या फाइनेंस कमीशन क्या बोलता है. बिकॉज इफ यू कोड दिस काइंड ऑफ डेटा इन योर एग्जाम, दिस विल गिव यू एडिशनल बेनिफिट. एग्जामिनर को लगेगा कि यार ये बंदा पढ़ के आया है, इसको नॉलेज है, गिव यू एडिशनल मार्क्स. तो ये भी अपने टू डू लिस्ट में ऐड कर लें. And I also want to tell you that this is the guidebook which is very important for your preparation. अगर आप आरबीआई में नए हैं, चीजें ज्यादा जानते नहीं हैं, चीजों के बारे में पता करते हैं, you can download this guidebook which is entirely free. I would have liked to show it to you, but I'm not having it right now. ठीक है, बट ये ऐसी गाइडबुक है जो बहुत कलरफुल है, बहुत कॉम्पैक्ट है. कुछ ही पेजेस में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. आपको पूरा डिटेल में सिलेबस मिल जाएगा, पास्ट ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है, और जितनी भी डिटेल्स हैं आरबीआई को लेकर, सैलरी, डिपार्टमेंट्स, प्रमोशंस, हायरार्की, सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी. यू नीड नॉट गो टू 10 डिफरेंट वेबसाइट्स एंड जस्ट बी लॉस्ट. डू नॉट kill your time. Use this guidebook, download it today, it's free. There is a link in the description of this video using which you can download this guidebook. जिसको आज ही डाउनलोड करो, 1-2 दिन में खत्म करो, and you will get the next dose of motivation which you would always be requiring to prepare for RBI Grade B 2025. And these are our courses. 2025 के we have a gold pack and a silver pack. Gold pack is a one-stop solution for phase 1, phase 2 and interview. यहाँ से आपकी सारी तैयारी होगी. Silver pack is mainly for phase 2 and interview. बट सिंस दी करंट अफेयर्स आर कॉमन फॉर फेज 1 एंड फेज 2, तो जो हम फेज 2 दे रहे हैं इसमें आपके फेज 1 के करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएंगे. बट क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर फेज 1 विल नॉट बी अवेलेबल इन द सिल्वर पैक. और अगर आप हमारा सैंपल मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज क्लिक ऑन दैट लिंक, डाउनलोड द सैंपल मटेरियल, चेक इट बाय योरसेल्फ एंड देन ओनली टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. And we are starting with the live classes. In fact, we have already started from 15th of October. हम live classes start कर चुके हैं. So you can be part of these live classes. ये live classes आपकी parallelly चलेंगी phase 1 और phase 2 की. Phase 1 live classes will be from 15th October till 17th of December, whereas phase 2 live classes will be from 15th of October till 31st January. So by 31st January, your whole of the syllabus would be completed. ठीक है, चाहे फेज 1 हो फेज 2, एटलीस्ट 1 राउंड ऑफ सिलेबस वुड बी कंप्लीटेड. आफ्टर दैट यू कैन वर्क ऑन योर वीक एरियाज और यू कैन डू रिवीजन एंड make a better understanding of the topics. You can practice descriptive writing. You can start solving sectional tests. You will have a lot of time. So live classes से फायदा ये होगा कि आपको एक डेली स्टडी प्लान टाइप्स मिल जाएगा. एक मोटिवेशन रहेगी कि क्लास है, टीचर आएगा, पढ़ाएगा. डाउट्स पूछ सकते हो क्लास में ही, ऐसा नहीं है कि डाउट्स टाइमली आंसर नहीं हो रहे हैं. और एक कंपटीशन फील होगा आपको कि यार इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे इनसे कम्पीट करना है, इनसे अच्छा करना है. सो दैट विल गिव यू अ सेंस ऑफ पर्पस. नहीं तो आप अपने हिसाब से पढ़ेंगे तो शायद 2 दिन पढ़कर तीसरे दिन नहीं पढ़ेंगे, फिर चौथे दिन आधा दिन पढ़ लेंगे. बट क्लासेस से आपको एक फीलिंग आती रहेगी, एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी कि मैं सिलेबस के साथ साथ चल भी रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ. सो विद दैट आई टेक योर लीव. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. विश यू बेस्ट.